بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ ہمارا یوٹیوب چینل اوورسیز پروڈکشن USA دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں شکاگو سے آپ کا میزبان جبار میو. آج کے پروگرام میں اپنے مہمانوں سے ان کے خیالات جانیں گے کہ وائٹ ہاؤس پر اپنوں ہی کی یلغار نے امریکہ پر کیا اثر ڈالا، اور اس پر تجزیہ لیں گے جناب سید اصفر امام، جنہوں نے اس ہنگامے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. سید اصفر امام جرنلزم میں 35 سال کا وسیع تجربہ ہے ان کا، اور ہمارے چینل کے لیے یہ اثاثہ ہیں اور یہ مفت میں اثاثہ ہیں. پاکستان کے لیے بھی ویسے تو یہ ایک انمول اثاثہ ہے ہمارے لیے. چلتے ہیں مہمانوں کے تعارف کی جانب. جناب سلمان آفتاب صاحب، ان کا تعلق شکاگو الینوائے سے ہے اور یہ ڈیموکریٹ کے ایکٹیو ورکر ہیں. یہ انہوں نے بہت سارے الیکشن بھی لڑے. جوان یوتھ کی یہ آواز ہیں اس شکاگو میں، اور یہ آج ہمارے ساتھ ہیں. سلمان بھائی، بہت شکریہ، ویلکم ان دا شو. بہت شکریہ آپ کا. اس سائٹ پر آپ کے سہیل مبشر وڑائچ صاحب تشریف رکھتے ہیں اور ڈیلس ٹیکسس سے ان کا تعلق ہے. حال ہی میں انہوں نے سٹی کا الیکشن لڑا اور یہ بہت ہی مقبول ہے وہاں. یہ بھی بالکل اسی طرح سے یوتھ ان کے ساتھ ہیں، لڑکی لڑکے بچے ان کا بھرپور ان کا کام کرتے ہیں اور یہ ان میں یکساں مقبول ہیں. اور تیسرے نمبر پہ ہیں ہمارے طلعت رشید صاحب، اور یہ بڑے جواں ہمت آدمی ہیں کہ انہوں نے جب میں نے انہیں دعوت دی پروگرام کے لیے تو انہوں نے ویلکم کیا پہلے کی طرح. حالانکہ یہ وقت ان کے لیے بڑا نازک ہے، اور اس سے پہلے میں 2 صاحبان نیو یارک سے اور ایک ٹیکسس سے، ہیوسٹن ٹیکسس سے، جب میں نے انہیں انوائٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ یار جبار بھائی مرواؤ گے کیا، ہم کیا بولیں. میں نے کہا یہی وقت تو بولنا ہوتا ہے. تو بہرحال طلعت رشید صاحب یہاں ریپبلکن کی پہچان ہے، اور اصفر بھائی ذرا سا خیال کیجیے گا کیونکہ یہ 2 ڈیموکریٹ کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں. تو جب میں نے اپنے مہمانوں کو اس پروگرام کے لیے دعوت دی تو میں نے اس وقت یہ سوچا تھا کہ یہ جو ہڑبونگ ہونے جا رہا ہے، صدر ٹرمپ نے اپنے حامیوں کو واشنگٹن بلا لیا تھا، تو میں سوچتا تھا کہ اس کو ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے اور اس پر کوئی پروگرام کرنا چاہیے، چونکہ یہ دنیا کے لیے ایک انوکھا تجربہ ہوگا. اور اسی طرح یہی سوچ رہا تھا کہ میں اسی طرح جب میں پاکستان سے تمام صحافی حضرات کو اور اینکرز کو جب سنتا تھا تو مجھے ان پر ہنسی آتی تھی کہ یہ وہ اس طرح سے تبصرہ کر رہے ہیں جیسے پاکستان کی گورنمنٹ ہو اور پاکستان میں کوئی یلغار کر رہا ہو اسلام آباد کی طرف، اور میں ان پر ہنستا تھا یہ سن. لیکن آج مجھے ہنسی آ رہی ہے اپنے اوپر، اور میں اپنے آپ کو بہت بڑا جرنلسٹ سمجھ رہا تھا، اور آج ہنسی آ رہی ہے کہ یہ ہوا کیا، یہ تو بالکل پلٹ گیا. تو یعنی اور آج میں اب پروگرام کی طرف باقاعدہ بڑھتا ہوں، اور ہمارے ساتھ اصفر امام DC واشنگٹن سے تجزیہ نگار کی حیثیت سے ہماری معاونت کریں گے اور یہ جہاں چاہے بول سکیں گے. تو میں اپنے پہلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں. سلمان آفتاب صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ مختصر جواب دیجیے گا. سلمان آفتاب صاحب، آپ کی پارٹی جب یہ الیکشن جیت چکی تو صدر ٹرمپ کی طرف سے اس الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگایا گیا، اور پوری دنیا یہ جانتی تھی کہ حالات خراب ہوں گے. تو آپ کی پارٹی نے اس سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی بنائی تھی؟ مثلا لوگ پریس کانفرنسز کرتے ہیں، پاکستان میں کارنر میٹنگز کرتے ہیں. چونکہ یہ ہمارا پروگرام پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کے ایک عام آدمی کے حوالے سے، تو ہم امریکہ کے اسٹینڈرڈ کو نہ تو مینٹین کر رہے ہیں، نہ ہی ہمارا مطمع نظر امریکہ کے رہنے والوں کے لیے. تو کیا آپ نے ایسا اداروں کو کوئی احساس دلانے کے لیے، یا کیا ہوتا ہے یہاں کیا کرنا چاہیے تھا، تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ سب کچھ ایسے ہی ہو جائے گا؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ٹیم کا کسی میچ میں صرف جیتنا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اپنے میچ کو ہر اینگل سے بچانا بھی ضروری ہوتا ہے. تو کیا آپ نے اس کی تیاری کی تھی؟ جی سلمان آفتاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. دیکھیے، امریکہ کی سیاست میں اور
थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनको सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है, उनकी सियासत में बहुत फर्क है। यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के तहत हर जो फोर फादर्स ने जो फाउंडर्स ने जो सिस्टम बनाया था, उसमें इन तमाम चीजों की गुंजाइश रखी गई है, सिवाय एक चीज के जो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि आप अगर कंपेयर करें, मैं लेट्स से ईरान के सिस्टम से, ईरान में कोई वो आदमी जो उस क्राइटेरिया पे फिट नहीं होता, वो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले सकता। तो अमेरिका में वो एक चीज नहीं है, या जो भी मुंह उठा के चला आता है, वो अगर उसके रिसोर्सेज हैं, उसके पास पैसे हैं, उसके पीछे पब्लिक है, तो वो खड़ा हो सकता है। ये एक मेरे नजर में वीक पॉइंट है। बाकी इस मुल्क का जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है कि आपने देखा कि एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म का आदमी आया जो 4 साल पहले तासुब की बुनियाद पे और एक यानी इस्लामोफोबिया, जेनोफोबिया, मसाजनी, कौन सी चीज ऐसी थी जो उसने नहीं उस वक्त प्रोपगेट की, और उसकी बुनियाद पे वो जीत गया और 4 साल वो हुकूमत करता रहा। लेकिन अगर ये कोई और मुल्क होता तो आप समझते थे कि इतना आसान होता इसका हारना और इसको हटाना। ये अमेरिका का जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, अगेन वो उसकी वजह से आज आप देख रहे हैं कि मल्टीपल चॉइसेस हैं, उसको इम्पीच भी किया जा सकता है, उसको 25th अमेंडमेंट के जरिए निकाला भी जा सकता है, उसको प्रेशर भी दिया जा सकता है रिजाइन करने का। तो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेट्स को कोई पॉलिसी इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है, लॉज ऑलरेडी बने हुए, उनको इम्प्लीमेंट करने की बात है। सलमान भाई, आपने कहा कि कोई पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है, तो फिर ये इतना हड़बड़ाहट जो दुनिया ने देखा और तमाशा बना, तो वो क्यों? देखिए, जो तमाशा हुआ है, ये एक जो भी प्रोटेस्ट वगैरह हुआ है, वो तो एक जमहूरी हक है, लेकिन उस प्रोटेस्ट में जिस तरह से एनार्की फैलाई गई है, जिस तरह से तूफान बदतमीजी मचाया गया है, उस पर बहस की जा सकती है। लेकिन प्रोटेस्ट तो आपका राइट है इस मुल्क में। तो ये जाहिर है कि किसी को इतना अंदाजा नहीं था कि ये इस लेवल तक पहुंच जाएगा, और अगर अंदाजा होता तो पुलिस और जितनी भी लोकल वाशिंगटन डीसी की जो लॉ इन्फोर्समेंट है, क्योंकि फेडरल तो जाहिर है प्रेसिडेंट के पावर के बगैर नहीं मूवमेंट कर सकती, जो कि ऐसा ही हुआ 5 घंटे 6 घंटे के बाद जो फेडरल फोर्सेस एंटर हुई हैं, फौज दाखिल हुई है। लेकिन लोकल पुलिस जो है उसका तो जाहिर है मेयर के अंडर में थी वो। तो अगर कोई थोड़ा सा भी खदशा होता इस बात का कि ये कोई गड़बड़ करेगा, अब आप देखिए एक इस वक्त राइट नाउ जो एक खदशा है वो इनॉग्रेशन के दिन का है, तो उसके लिए आप देखिएगा कि कितना जबरदस्त इंतजाम होगा, और वहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती। तो पहले कभी आज तक हुआ नहीं है, इसलिए एक अनप्रेसिडेंटेड चीज थी, तो उसकी वजह से ये आप देख रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा कुछ चीजें वादे करना चाहूंगा। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं कर रहा था कि कोई तवक्को नहीं की जा रही थी कि इस सतह पर मामला जाएंगे। मेरा ख्याल है कि तमाम अदारों को बखूबी अंदाजा था कि सूरत हाल किस रुख पे जाएगा, और एक दूसरे को बाखबर किया जा रहा था। इसमें वाशिंगटन डीसी की जो सिटी गवर्नमेंट है, उसके मेयर ने, उसके पुलिस चीफ ने, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक दिन पहले। उन्होंने खबरदार किया था कि कोई असला लेकर आएगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने पूरे शहर में पोस्टर लगाए थे कि सिटी का लॉ ये है कि आप कोई असला लेके आएगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इंक्लूडिंग ये निशानदेही की गई थी कि एक कांग्रेस वुमेन है जिन्होंने असला लहराते हुए अपनी एक वीडियो वायरल की थी, तो उनका नाम लेकर बताया गया था, और ये भी कहा गया था कि शहरी इंतजामिया उनके दफ्तर तक राब्ता कर रही है ताकि इस बात को इंश्योर किया जा सके कि वो असला लेकर नहीं आए। अगर बशमूल कांग्रेस वुमेन अगर असला लेके आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा, मैं ये भी साथ साथ वादे कर दूं कि आप कह रहे हैं कि फौज नहीं बुलाई गई थी। शहरी हुकूमत ने नेशनल गार्ड तलब किए हुए थे, और नेशनल गार्ड तमाम रेलवे स्टेशन के ऊपर में हसास मुकामात पर मौजूद थे। मुझे सिर्फ इस बात पे हैरत हुई कि जो कैपिटल हिल की अपनी पुलिस है उसने क्या इंतजाम किए, क्योंकि शहरी हुकूमत की जो पुलिस थी वो कैपिटल हिल के अंदर दाखिल नहीं हो सकती थी। वो
कैपिटल हिल के अंदर उनकी जो अपनी पुलिस है वो किसके मातहत है, या यकीनन वो तो कांग्रेस के मातहत है। गवर्नमेंट, आप ये नहीं कह सकते कि वो व्हाइट हाउस के मातहत है या ट्रम्प इंतजामिया के मातहत है। आपने देखा कि यही वजह है कि अपनी फेलियर का इतराफ करने के बाद कैपिटल पुलिस की चीफ ने अपने ओहदे से रिजाइन किया है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता था, हर सतह पे पता था, एक दूसरे को खबरदार कर रहे थे, बता रहे थे कि हालात खराब होंगे। और इस तरह की एक जो पहले 1 महीने पहले इस तरह का जो एक डेमोन्स्ट्रेशन शहर में हुआ था, उसमें कई लोगों को छुरियां मारकर जख्मी भी किया जा चुका था, काफी लोग उसमें गिरफ्तार भी हुए थे। तो इस तनाजुर में अच्छा, जो लोग मुजाहरा कर रहे थे वो कई दिनों से शहर के अंदर और शहर के साथ जो वर्जीनिया के इलाके हैं उनके होटलों में रिहाइश पजीर थे। तो मैं समझता हूँ कि शहरी इंतजामिया भी अपनी सिक्योरिटी के इंतजाम करने में नाकाम रही। कांग्रेस की जो अपनी पुलिस थी, मैं उसके ऊपर तो मुझे इस बात की हैरत है कि उन्होंने कोई भरपूर इंतजाम नहीं किया। अगर उनके पास नफरी कम थी तो वो अपनी मदद के लिए नेशनल गार्ड को या बुला सकते थे, कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और बहुत थोड़ी सी नफरी में वो जो शुरका थे मुजाहिरीन, वो इमारत के बहुत नजदीक आ गए, इमारत के अंदर दाखिल हो गए, और उसके बाद जो कुछ हुआ सारी दुनिया के अंदर मौजूद है। जी। तलत भाई, मैं आपसे गुजारिश ये है कि ये बताइएगा कि किसी महज़िब मुआशरे में इस तरह के तर्ज अमल को इंतहाई नामुनासिब समझा जाता है। आप अगले इलेक्शन में कैसे अपने वोटर्स के पास जाएंगे? पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत इनवाइट करने का, आप हमेशा इज्जत देते हैं। मैं एक बात ये कहूँगा कि जो ट्रम्प की जितनी भी रैलीज हुई हैं उसमें आप देखें कहीं हंगामा नहीं हुआ, उसमें हजारों लाखों के हिसाब से लोग आए थे। तो इसलिए जो डीसी पुलिस थी उन्होंने काफी इजी लिया, उनको ये पता था कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे अनासर थे जो एंटीफा के, बल्कि कुछ तस्वीरें ऐसे भी थी जो BLM में भी इन्वॉल्व थे और यहाँ पे भी इन्वॉल्व थे। उन्होंने कुछ हंगामा किया जिस वजह से ये सारा, असर भाई ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो इसमें फेल हुई है, या कैपिटल पुलिस वो फेल हुई है, इसलिए उसके चीफ ने रिजाइन कर दिया। आज उन लोगों ने इतनी तैयारी नहीं की थी, इसलिए ये सारे हंगामे हुए हैं। हालांकि उनको पता था कि ये होगा, इतना बड़ा हंगामा तो नहीं, मतलब क्राउड होगा, जो कि जाहिर है जो ट्रम्प की फेवर में थे वो लोग आए। एहतजाज तो यहाँ पे होता है, हर हफ्ते होता है, बल्कि जब प्रेसिडेंट ट्रम्प बने थे, आपको पता होगा मैं वहां पे था, उस वक्त भी लोग जो है, बल्कि मैं जब जा रहा था इनॉग्रेशन के लिए, लोग मुझे मना कर रहे थे आप क्यों जा रहे हैं, और लोग चारों तरफ जहाँ इनॉग्रेशन होती है वहां पे खड़े हुए थे। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये कि ये हद से बढ़ गया, जो कि अच्छा नहीं हुआ। लेकिन ये है कि अब जाहिर है इसके मेजर जो हैं फ्यूचर इलेक्शन वगैरह में, अब चूंकि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो कंट्रोल में है सेनेट और कांग्रेस में, तो उनको जो है टाइट क्या कहते हैं रेगुलेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे ताकि ऐसी हंगामी सूरत दोबारा ना पेश आए। असर भाई कुछ, मैं कुछ कह सकता हूँ? अभी आपके पास आते हैं सलमान भाई। जी अच्छा, इसी का मैं थोड़ा सा यहाँ पे कन्वर्ट कर ये बता दूं कि शायद इसी का नतीजा है कि अभी अब से कुछ देर पहले ही मैं पूरे वाशिंगटन का विजिट करके आ रहा हूँ, कैपिटल हिल और व्हाइट हाउस, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट सील कर दिया गया है चारों तरफ से, उसकी फेंस लगाए गए हैं, दीवारें खड़ी की गई हैं और ऑलमोस्ट सील कर दिया गया है। इस तरह का जो मंजर है ये पहले माजी में वाशिंगटन ने नहीं देखा था, जो इस वक्त मंजर पेश आ रहा है। तो बहरहाल ये कि ये जो जिस तरीके के जुलूस थे और जिसके बारे में पहले ही प्रेडिक्शंस थी, तो उसमें जो इंतजामात कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए थी कैपिटल पुलिस की सिटी पुलिस के साथ, और फिर अगर उनको ये जरूरत महसूस कर रहे थे तो उनको फोर्स तलब करना चाहिए थे। यकीनन आप तलत रशीद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इतने बड़े मॉब में कुछ लोग अपने मकासद को इस्तेमाल करने के लिए मॉब को बहुत तेजी से मोबिलाइज कर लेते हैं, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसके लिए बेहतर ये होता है कि उनको हुदूद में रखने के लिए कैपिटल हिल के जो हुदूद में ही उनको दाखिल नहीं होने दिया जाता, और उसके लिए पहले से पेशबंदी की जाती, मंसूबाबंदी की जाती। सबको पता था, शहर के बच्चों को पता था कि हालात खराब होने हैं, लिहाजा आप उन्हें वहां पे नहीं जाना। एक दूसरे को लोग कह रहे थे कि यहाँ पे हंगामा होना है, आप नहीं जाना है वहां पे। और ये भी बाज़ाब्ता ऐलान किया हुआ था कि ये लोग उस वक्त जमा हो रहे हैं जब वोटों की गिनती होनी है। तो जाहिर है इसमें हालात को, यानी कोई ऐसा इम्कान नहीं था कि जिसको लोगों का नहीं पता हो
कि वो अचानक ही इस तरह की सी चीजें हो गई। एन तवक्को के एन मुताबिक हुआ। मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि जो लोग जिम्मेदार थे इसको रोकने के, वो उन्होंने कोई मनसूबाबंदी नहीं की और उसकी वजह से जानें ज़ाया हुई, उसकी वजह से मैंने जो हजीमत उठानी पड़ी और एक जमहूरी अदारा एक तकद्दुस पामाल हुआ, और ये अफसोसनाक है पूरी दुनिया के लिए। मैं सलमान भाई के पास बाद में आता हूँ वड़ाई साहब के पास से होते हुए, लेकिन आखिर में मैं तलत भाई की बात को यानी उससे ज़रा सा इख्तिलाफ करते हुए कि किसी तरह का भी जुलूस हो, कोई मॉब हो, कोई तकरीब हो, तो ये जो मुद्दई होता है, जो दावत दे रहा होता है, जो मेज़बान होता है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। तो चलते हैं मुबश्शिर वड़ाई साहब की तरफ कि आप ये बताइएगा मुबश्शिर वड़ाई साहब, क्या ऐसा तो नहीं है कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने ये सब खेल खुद सजाया हो ताकि कौम इस बेढंगे तरीके को नापसंद करते हुए यकजा हो जाए और अमेरिका एक यकसू कौम बनकर उभरे? क्या ऐसा तो नहीं था? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जब्बार भाई प्रोग्राम में लेने का। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा इस पूरे एपिसोड पे जो मेरा नुक्ता नज़र वो ये है कि ऑलमोस्ट एक माह पहले ये ऐलान तकरीबन हो चुका था कि ये प्रोग्राम यहाँ पे होने वाला है, और अगर देखा जाए तो ऐसे महसूस हो रहा था, और हमने चूंकि अपनी दौरे तालिब इल्मी में बहुत सारे जलसे जुलूसों में, रैलियों में शिरकत की, लीड भी किया, तो हम वही मतलब प्रीटी मच अंदाजा होता है कि ये मॉब क्या रुख इख्तियार करेगा और किस मौके पे कैसे नॉर्मली जलसे जुलूसों को चलाया जाता है या खास मकसद के लिए कैसे उन्हें डायरेक्ट किया जाता है। तो ये पहले से एहसास हमें, इवन हम काफी दूर है वाशिंगटन डीसी से, तो लग रहा था कि कुछ ना कुछ खराब होने वाला है वहां पे। और जब हम कह रहे हैं कुछ ना कुछ खराब होने वाला है, तो बेनिफिशरी जो है उसका, वो अल्टीमेटली जो मौजूदा हुकूमत इस वक्त है वो बनने जा रही थी अगर खून खराबा ज्यादा हो जाता, अगर हालात डीसी में बिगड़ जाते, हाथ से निकल जाते और चीजें दूसरे शहरों, दूसरी स्टेटों में चली जाती, तो एक शायद जवाब मौजूदा सदर को मिल जाता एमरजेंसी लगाने का या इस तरह के किसी इकदाम का, क्योंकि और कोई चारा कार बज़ाहिर नजर नहीं था आ रहा उन्हें कि वो कुछ यहाँ पे कर सके। अच्छा, इस तरह की पहले कोई मिसाल नहीं है, लेकिन इन 4 सालों में स्पेशली जो कुछ हुआ है, उससे पहले भी अमेरिकन हिस्ट्री में कभी नहीं था हुआ कि धांधली के इल्जाम आज तक नहीं थे इलेक्शन में लगे, वो भी यहाँ पे लग गए। फिर मतलब अभी जिस तरह आप देखेंगे ट्विटर पे, मतलब एक अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ कोई बिलीव नहीं कर सकता कि जिस तरह की चीजें हो रही हैं या अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से की गई हैं, इस तरह की मिसाल पहले कहीं पे मौजूद नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि एस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई किरदार था। हाँ, वही एक खास मैं पूरी रिपब्लिकन पार्टी को इसका जिम्मेदार नहीं समझता, एक खास तबका उस पार्टी के अंदर था जो चाहता था कि कुछ हो जाए और उसकी बुनियाद पे हमें कुछ और करने का जवाब मिल जाए। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। जी, पहले तो मैं जरा मैं पहले तो जो मुझे एतराज है मैं उस पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, जो आप उसी के साथ तलत साहब ने बात की, तलत रशीद साहब ने, कि इंतफा के लोग उसमें शामिल थे। मैं सलमान साहब, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं सवाल के साथ आपका। तो मैं समझता हूँ कि तलत साहब की बजाय आप रिपब्लिकन की तरफ अगर इशारा कर लें तो नहीं, अभी इन्होंने, क्योंकि इन्होंने कहा ना कि इंतफा के लोग शामिल थे, तो मैं वो जवाब देना चाहता हूँ। आइए मैं दूसरा सवाल आपसे कर लूँ, उसके साथ मिला के पहले आप वो अपना एतराज दे दीजिएगा। पूरी दुनिया अब वाज़े तौर पर अमीर और गरीब के खानों में बढ़ चुकी है और इसका एक ग्रुप दुनिया को भारी टैक्सों के जाल में फंसाकर गुलाम बना रहा है, और अमीर अब तो व्हाइट हाउस में भी कानून को पैरों तले रोंद रहा है। आपकी पार्टी इसे कैसे निपटेगी? जी सलमान साहब। मैं सवाल समझा नहीं आपका, दोबारा कहिए प्लीज। पूरी दुनिया अब वाज़े तौर पर अमीर और गरीब के खानों में बढ़ चुकी है, जबकि पहले ऐसा होता था कि एशिया सुर्ख और दुनिया सुर्ख और सब्ज ये वहां से निकल चुकी है, और इसका एक ग्रुप जो अमीरों का ग्रुप है वो अपने निज़ाम को पूरी दुनिया के बिगाड़ कर टैक्सों के जरिए आम आदमी को, आम छोटी छोटी हुकूमतों को गुलाम बना रहा है।
اور امیر اب تو وائٹ ہاؤس میں قانون کو پیروں تلے روند رہا ہے. آپ کی پارٹی اس سے کیسے نمٹے گی؟ میرا اشارہ ریپبلکن کی طرف ہے. بہرحال میں آپ کے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے ذرا پچھلے ٹاپک پہ میں گفتگو کرنا پسند کروں گا. کہ یہ اسفر صاحب نے بھی جو فرمایا مجھے حیرت ہوئی ہے اس پہ کہ یہ تو صحافی ہیں ماشاءاللہ، چلیں ان کا تو فرض ہے کہ وہ ریپبلکن ہے، ان کو اپنی پارٹی کو اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کرنا ہے. پوری دنیا نے پروف کر دیا، میڈیا صبح شام چیخ رہا ہے کہ آپ کا ایک اسٹیٹ ریپریزنٹیٹیو جو ہے ابھی جیتا ہے ساؤتھ کا، وہ وہاں موجود تھا، اس کو ابھی انہوں نے اریسٹ کیا ہے. آپ کے جتنے رائٹ ونگ کے ایلیمنٹ ہیں، جتنے بھی پراؤڈ بوائز کے لوگ ہیں، وہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ سب اس میں انوالو تھے. تو یہ انتفاع کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ بات یہ کہ جو اسفر صاحب نے فرمایا کہ کچھ لوگ تھے اس میں، تو کچھ لوگ تھے، میں مانتا ہوں اس بات کو. ان میں کچھ لوگوں میں ایک آدمی جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، اس نے انسٹیگیٹ کیا. باقاعدہ ایک پوری وائرل ویڈیو آپ 1-2 دن میں میڈیا میں دیکھ لیں گے، آج ہی وائرل ہوئی ہے، جس میں ان کی انڈسکلوز لوکیشن سے ان کے سچویشن روم کے اندر ٹرمپ کی بیٹی، ٹرمپ کے سارے بیٹے، اس کے بیٹے نے وہ ٹیپ کی ہے پوری. اس میں کلیئر میسج وہ دے رہے ہیں کہ جاؤ لڑو، فائٹ کرو فائٹ کرو. جو اس کے بیٹے کی ڈان جونیئر کی گرل فرینڈ ہے کمبرلی، وہ کھلے عام بول رہی ہے کہ جا کے فائٹ کرو. تو یہ انتفاع کہاں سے آ گئی ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمیں حقائق پسند ہونا چاہیے اور بات وہ کرنی چاہیے. اب جیسے بہت سارے ریپبلکنز، آدھے سے زیادہ ریپبلکن آلریڈی، خیر وہ تو کہتے ہیں نا کہ ریٹس آر گیٹنگ آؤٹ فرام دا سنکنگ شپ، تو وہ بہت سارے تو اس حوالے سے باہر آ گئے. لیکن کچھ کے ظاہر مورلز ہیں. ریپبلکن پارٹی ایک بہت اس قسم کی پارٹی تھی جس میں مورلز تھے، جس میں ایک ان کی ویلیوز ہوتی تھی. آپ بش سے لاکھ اختلاف کریں، آپ ریگن سے لاکھ اختلاف کریں، لیکن یہ ایک ڈیسنٹ لوگوں کی اجتماعی طور پہ پارٹی تھی. اس آدمی نے اس پورے سینیریو کو چینج کر دیا ہے. اب یہ ایک جاہلوں کی پارٹی ہے جو صرف چیخ پکار ہنگامہ کرنے والے لوگ ہیں. حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ ابھی بھی 74 ملین لوگوں نے اس آدمی کو، جو شاید غالباً اپنا نام بھی، جس کو ہم کہتے ہیں نا محاورتاً، جو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا ہے، اس کو ووٹ دے کے دوبارہ کامیاب کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس گریٹ نیشن کے ساتھ. یہ جو 4 سال گزرے ہیں، یہ بدترین 4 سال تھے، اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسے 4 سال ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہوگا. یہ ایک یونیک سچویشن تھی. تو یہ تو جواب ہو گیا جناب انتفاع کا. اب آپ کا جو سوال ہے، معذرت کے ساتھ یہ سوال میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ میں کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. یہ آپ سوشلسٹ کنٹری میں تو بات کر سکتے ہیں، آپ جہاں سوشلسٹ نظام ہے، انگلینڈ میں، فرانس میں، کینیڈا میں، وہاں کے بارے میں. لیکن یہ ایک کیپٹلزم ہے اس ملک کے اندر، اور بہت کامیاب سسٹم ہے، اور اب تک صحیح چل رہا ہے. یہ صرف برنی سینڈر کے چند لوگ ہیں، حامی ہیں، جو اس قسم کی بات کرتے ہیں. یہاں اس ملک میں اپرچونٹیز ہیں. اس ملک کے اندر اگر آپ محنت کرتے ہیں، اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو آپ کے پاس سینکڑوں اپرچونٹیز. تو یہاں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ غریب تر ہوتا جا رہا، امیر تر. میری آپ سے اس بارے میں گفتگو بھی ہوئی تھی، پرسنل گفتگو، کہ جو ہمارے یہاں جو طبقہ موجود ہے، جو محنت نہیں کرنا چاہتا، کام نہیں کرنا چاہتا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جس کو کام کرنے کا کہ اس کی خواہش ہے اور اس کے اندر عزم ہے، اس کے لیے اپرچونٹیز بے تحاشا موجود ہے. تو آئی ڈونٹ اگری ود یو کہ یہاں اس ملک کے اندر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ملک ہے جس میں ہر شخص کو اپرچونٹیز ہے، جہاں امیر کو بھی اپرچونٹیز ہیں، مڈل کلاس کو بھی، لوور مڈل کلاس کو بھی، اور ورکنگ کلاس کو. اسفر بھائی کوئی رسپونڈ کریں گے؟ نہیں، میں اسی بات پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو پھر یہاں پہ پھر یہ الزام صدر ٹرمپ پہ نہیں آنا چاہیے کہ انہوں نے پیسے کے بل بوتے پر اقتدار حاصل کر لیا، اگر یہ ایسا ہی ہے تو اچھا. پھر دوسری بات یہ کہ میں نے کسی گروپ کسی کی بات نہیں کی، میں اپنی نقطۂ نظر کی وضاحت کروں. یہ تو آپ تسلیم کریں گے نا کہ آخر کیپٹل ہل کے پولیس چیف نے اب استعفیٰ کیوں دیا؟ یہ تو آپ تسلیم کریں گے نا کہ ان کی پلاننگ نہیں تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انتفاضہ کے لوگ تھے یا کون تھے کچھ لوگ جو اپنا کھیل کھیل سکتے تھے. اسفر بھائی، کیپٹل پولیس جو ہے وہ کس کے انڈر میں ہے؟ لوکل پولیس کے انڈر میں ہے کیا؟ بالکل واشنگٹن کے انڈر میں؟ بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں. کیپٹل پولیس میں لوکل پولیس کے انڈر میں نہیں ہے. بالکل، that's what I'm saying. وہ کہہ رہے ہیں کانگریس کے کانگریس لوکل ہوتی ہے کیا، یا کانگریس فیڈرل ہوتی ہے؟ کانگریس فیڈرل ہوتی ہے، لیکن کانگریس آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ لوکل پولیس ہے؟
नहीं, कांग्रेस तो सदर ट्रम्प के मातहत नहीं है ना। हाँ, व्हाइट ट्रम्प हाउस के मातहत तो नहीं है, लेकिन फेडरल तो है ना, लोकल तो नहीं हुई। लोकल का मतलब है वॉशिंगटन डीसी की पुलिस लोकल है, वो लोकल होता है इसका मतलब। लोकल पुलिस ने तो बहुत मुनासिब इंतजाम किए थे, शहर के अंदर अमन अमान बिल्कुल कंट्रोल में रहा। लेकिन जो कैपिटल पुलिस, ये जो पार्लियामेंट के कैपिटल हिल की अलग होती है, कैपिटल हिल की अपनी पुलिस थी। हाँ। उस कैपिटल हिल के अंदर सिटी पुलिस के लोग नहीं जा सकते थे, नहीं जा सकते। तो वो वहां पे सारे इंतजाम करने की जिम्मेदारी कैपिटल पुलिस की थी, और वो कैपिटल पुलिस व्हाइट हाउस के मातहत नहीं है, ये बात वाज़ेह रहना चाहिए। वो पार्लियामेंट के मातहत है, और पार्लियामेंट की जिम्मेदारी थी कि वो अपनी सिक्योरिटी के इंतजाम करते। और पार्लियामेंट रिपब्लिकन्स की है, सेनेट रिपब्लिकन्स की है। वो किसकी है मैं ये बात नहीं कर रहा। तो बस रिपब्लिकन जो भी ब्लेम है वो सारा रिपब्लिकन पे जाता है, दिस वे और द अदर वे। देखिए, ऐसा करते हैं कि ये इंशाल्लाह फिर किसी और ये तो बहस पूरी रात चली जाएगी। तो आते हैं तलत रशीद साहब की तरफ। तलत साहब, ये बताइएगा कि आपकी पार्टी की वजह से व्हाइट हाउस की फेंस 7 जनवरी को मैंने देखा कि बहुत ऊंची, तकरीबन 6 फीट उससे ज्यादा ऊंची लगाई गई है, जो इस बात की निशानदही करती है कि व्हाइट हाउस को अब आईनी दीवार बनाकर बजाया जा सकता है, ना कि दिल से कानून का एहतराम करते हुए। दुनिया जब इस फेंस को लगी हुई देखेगी तो वो जो पहले जो आज़ादी नजर आती थी, फेंस के थ्रू एक मैसेज आता था, तो आप कैसा देखते हैं? देखिए, मैं अब सलमान आफ्ताब की बातों का जवाब देना चाहता हूं, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। मैं जो आपका सवाल है उसका मैं डायरेक्ट आंसर ये देना चाहता हूं, चूंकि जो कुछ भी हुआ अभी जो हंगामे हुए, उसके प्रिकॉशन करने के लिए उन्होंने ये किया कि चारों तरफ फेंस लगा दिए कि दोबारा ये चीज रिपीट ना हो, क्योंकि जाहिर है जो फेलियर पहले हुआ था, उन्होंने उसका हल ये निकाला है कि चलें लोगों को दूर रखा जाए। हालांकि ये पहला कभी ऐसा नहीं हुआ, बट ये कि प्रिकॉशन जो है ये तो जाहिर है कैपिटल पुलिस का उनका काम है, तो ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि इनॉग्रेशन में कोई ऐसी बात ना हो। आपको मैंने पहले भी कहा कि ट्रम्प के कभी भी किसी भी जलसे में ऐसी बात आज तक नहीं है। वो 4 साल तक करते रहे, लोग उनको गालियां भी निकालते रहे, लेकिन कोई उनके जितने भी फॉलोअर थे उन्होंने कभी ऐसी हरकत नहीं की। उसमें कुछ अनासर वो हर पार्टी में होते हैं। अब आपको पता है जो कुछ हुआ जुलाई अगस्त में, पूरा मुल्क जल रहा था वहां पे, और डेमोक्रेट पार्टी ने तो कंडेम भी नहीं किया उसको। उन्होंने कहा कि ये पीसफुल है, हालांकि वो देख रहे थे क्या हो रहा है, क्या जल रहा है, लेकिन ये है कि वैसी नौयत का ये कुछ भी नहीं हुआ। सब दूसरा सवाल मैं कुछ कह सकता हूँ? एक सेकंड मुझे और दे दीजिए। देखिए, जो उनकी जो पार्टी के जो जलसे होते थे उसमें कुछ भी नहीं हुआ, तो ये कौन सी कहने की बात है? वो तो उन्हीं के लोग होते थे, कोई मुखालफत नहीं होती थी, कोई उसके खिलाफ कोई बात नहीं होती थी। अब तो वो इलेक्शन हार गया है तो जाहिर है अब वो चीख रहे हैं लोग। उसने उनको इस्ताल दिलाया है, उसने उनको सड़कों पे लेकर आया है। वो पिछले 6 महीने से 8 महीने से चीख रहा है कि धांधली होगी, धांधली होगी। मेलिंग वोटों की बातें जब करता रहा तो हमेशा ये कहता था कि धांधली हो रही है। तो ये उसकी पार्टी में जब उसका प्रोग्राम हो रहा है, इट मेक नो सेंस कि वो वहां पे आके हंगामा करेंगे। वहां क्यों करेंगे? वो तो उनका अपना प्रोग्राम है। हंगामा करने की जगह ये है जहां पे वो हार चुके हैं, और हारने के बाद वो अपनी शिकस्त को फतह में तब्दील करने के लिए बेताब हैं, बाय हुक और बाय क्रुक, ऑल द वे फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। तलत भाई, मैं आपसे दोबारा एक छोटा सा सवाल कर लेता हूँ। जी बोले। आपकी पार्टी इस तर्ज अमल में, यानी जो भी कुछ ये हंगामा आराई हुई और जो माहौल बना, उसमें पूरी दुनिया ये महसूस करती है कि आपकी पार्टी कुछ हिस्सों में या 2 हिस्सों में या 2 से कम हिस्सों में बढ़ती नजर आती है। आप इसे कैसा देखते हैं? देखें, उसमें कुछ सेनेटर्स हैं जो ट्रम्प के पहले भी खिलाफ थे, वो अभी भी खिलाफ हैं, और उनका मौक़िफ़, जैसे मिट रोमनी हो गया और कुछ 3-4 में नाम नहीं लेना चाहता, मिट रोमनी था, वो है, और डिवीजन होती है। ये डिवीजन जो है, ये अगर डेमोक्रेट की बात करें ना, डेमोक्रेट को तो अब पता चलेगा कि वहां पे जो 2 हिस्से बटे हुए हैं, एक तो यंग है और एक ओल्डर, ये पार्टी दोनों में डिवाइड हो चुकी है। बर्नी सैंडर्स का अलग मौक़िफ़ है, जो ये यंग ओसाफ आया है इसका अलग मौक़िफ़ है। ये अभी इनको पता नहीं चलेगा, जब ये सेनेट में आएंगे, कांग्रेस में आएंगे, सेनेट में आएंगे, फिर पता चलेगा कि एक पार्टी आपको एक तरफ खींच रही है और दूसरा ग्रुप एक तरफ खींच रहा है। जहां तक रिपब्लिकन का ताल्लुक है, ठीक है, लेकिन रिपब्लिकन फिर भी यूनाइटेड रहते हैं। उसमें खाली चंद हैं, 5 या 10 लोग हैं जो ट्रम्प के खिलाफ पहले भी थे, अभी भी है।
تو یہ جو ہے یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ فیور کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. ٹرمپ جو ہے میں سب کو کہہ دوں کہ وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے, کہ ان کو ریپبلکن میں پسند نہیں کیا تھا, ڈیموکریٹ نے پسند نہیں کیا تھا, لیکن پھر بھی دیکھیں نا جو 74 ملین لوگوں نے ووٹ دیا ہے, حالانکہ وہ ایک پاور ہے. اب یہ جو ہے یہ ایک موومنٹ ہے. اب ٹرمپ چلا جائے گا, یہ موومنٹ ختم نہیں ہوگی. اس میں لوگ جو ہیں, جو خاص کر جو امریکنز ہیں, جو یہاں کے لوکل امریکنز ہیں, وہ تنگ آ چکے ہیں دونوں پارٹیوں سے. تو وہ اس لیے انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو ہے جس کو ٹرمپ کہتے ہیں اس کو لے کے, حالانکہ ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی کے بڑے پرانے مجھے ہوئے سیاستدان تھے, وہ سارے پیچھے رہ گئے. طلعت صاحب دیکھیے, مطلب ہم نے اپنے ایک پروگرام میں ایک فور کاسٹ کی تھی, اور وہ ہم نے اپنے پروگرام کی فور کاسٹ نہیں تھی, تو ہم ایلن لچمین کو سن رہے تھے, اور جو اتنا کلوز جاتا ہے, اور وہ ایسا نہیں کہ کوئی وہ ستاروں کا حال جانتا ہے, وہ اس قوم کے مزاج کو دیکھتے ہوئے, مختلف جگہ کو دیکھتے ہوئے جو 13 کیز بناتا ہے, اس نے بڑی انتہائی مشکل پیش مطلب وہ کی تھی, اور ہم نے اسے فور کاسٹ کیا تھا اسی کے بھی آپ پہ. ہم نے ذاتی طور پر کہ نیکسٹ صدر جو ہے امریکہ کا جو بائیڈن ہوگا. تو ہم چلتے ہیں وائٹ صاحب کی طرف. وائٹ صاحب بہت شکریہ, آپ بڑے سکون سے تسلی سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں آپ اس سانے پر کیسا رد عمل دیکھتے ہیں؟ آپ لوگوں سے ملتے ہیں, مجھے پاکستان میں سننے والوں کو یہ بتائیے کہ ہماری دیسی برادری کے علاوہ انڈین پاکستانی اور وائٹ کمیونٹی میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں, کیا ہے ان کے رد عمل؟ آف کورس جبار بھائی, ایسا ہے کہ کسی نے بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ یہ اس طرح کا جو واقعہ ہے وہ امریکہ میں ہوا ہے, اور اس میں سب کی بیسیکلی اگر دیکھا جائے ایز اے قوم, ایز اے نیشن, یہ سب کے لیے باعث شرمندگی تھا. اور لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس میں پیچھے جائیں, اس کا آگے سلمان صاحب نے تھوڑا سا اس کا ہنٹ دیا بھی کہ پچھلے 6 ماہ سے لگ رہا تھا کہ ٹرمپ یہ الیکشن نہیں جیت رہے. سرویز آ گئے تھے, اور سرویز تو خیر پچھلی دفعہ بھی تھے کہ وہ بھی جیت رہی ہیں, کیا نام نہیں آتا, جو ہلری کلنٹن ہے. لیکن اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی نے غلطی کیا کی, یا ڈیموکریٹک پارٹی کا جو ورکر تھا, یا ڈیموکریٹک پارٹی کا گھروں کے اندر جو بیٹھا ہوا عام اور ووٹر تھا, اس کو نکالنے کے لیے کوئی خاص انہوں نے محنت نہیں کی کہ ہم تو جیت رہے ہیں. تو اسی چکر کے اندر پھر ہلری لوز کر گئی, اور اس وقت چونکہ کافی زیادہ انتھوزیازم تھا ٹرمپ کمپین کے اندر, سو دے ون لاسٹ ٹائم. لیکن اس دفعہ ڈیموکریٹ پارٹی نے اس چیز کا احساس کیا, اور اس بات کا انہوں نے خیال کیا کہ لاسٹ ٹائم ہمارے ہارنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم اپنے ووٹر کو گھروں سے باہر نہیں نکال سکے. تو اس دفعہ ڈیموکریٹ پارٹی کی اس حوالے سے بڑی اچھی پالیسی رہی کہ پچھلے 1 سال سے, الیکشن سے قبل 1 سال, انہوں نے خاص طور پر جو مسلمان ووٹر ہے, جو ایشین جو آپی کا ووٹر ہے, اور جو دیگر کمیونٹیز جو کہ منورٹیز ہیں, ان پہ بہت زیادہ کام کیا, اور دے میک شور کہ وہ لوگ باہر نکلیں, اور وہ لوگ باہر نکلے, اور یہ الیکشن ظاہر ہے ڈیموکریٹ پارٹی نے جیت لیا. اب آپ کے سوال کے جو یہ ہے کہ یہ ایک جواب میں کہ بہرحال یہ ایک باعث شرمندگی پورا فیل تھا, پورا یہ جو ایک ایپیسوڈ بنا ہے, اور یہ بڑی دیر تک اب یاد رکھا جائے گا. اب ہم اگر اس کی مثال اگر دیکھیں کہ 1997 میں پاکستان میں حملہ ہوا تھا سپریم کورٹ کے اندر, اور آج تک مطلب پچھلے 23 سال گزر گئے اس واقعے کو, اور ابھی تک اس بات کا تانا دیا جاتا ہے. پی ٹی آئی کا دھرنا ہوا, اسمبلی کے دیواروں کے اوپر انہوں نے کپڑے سوکھنے کے لیے ڈال دیے, اور صرف وہ کپڑے جو سوکھنے کے لیے ڈالے ہوئے تھے اس کا تانا آج تک ان کو مل رہا ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑا واقعہ ہو چکا ہے یہاں پہ, جو کہ اور اس کا آئی ڈونٹ نو کہ کتنے ڈیکیڈز لگیں گے ابھی اس داغ کو دھوتے دھوتے ریپبلکن پارٹی کو. دیکھیے مطلب یعنی جو یہاں کی فورکاسٹر ہے وہ دنیا میں مشہور ہے یہ بندہ, اور لاسٹ ٹائم ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے جب ہلری کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا 2 مہینے پہلے, ایلن لچمین نے دوبارہ واپس آ کر اور یہ پھر فورکاسٹ کی کہ نہیں ٹرمپ جو ہے جیت جائے گا. تو وہ ایک سسٹم ہے ان کا. تو یعنی اس سسٹم پر اگر ہم بات کریں تو ہم آپ جب پبلک
ریپریزنٹ ہوتے ہیں, ان کے نفس کو سمجھتے ہیں. تو یہ باتیں تو بہت ساری پہلے ایسی تھیں کہ مطلب اگر آپ بھی نکل آتے, تو میں اس طرف آؤں گا سلمان آفتاب صاحب کی طرف, کہ جس طرح سے ٹرمپ کے حامی باہر نکلے تھے, تو دنیا میں ٹٹ فار ٹیٹ فطری طور پر ہوتا ہے, انسان کی جبلت میں یہ بات شامل ہے. تو کیا آپ نے کوئی پلاننگ ایسی کی تھی کہ آپ کے لوگ سڑکوں پر نہ آئیں, اور مطلب یہ تھا کہ اگر واقعی میں اگر آپ کے لوگ بھی سڑکوں پر آ جاتے, ڈیموکریٹ بھی, تو بڑا خون خراب ہوتا دنیا میں. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, ٹرمپ کے لوگوں سے آپ جو دوسرے جو امریکنز ہیں ان کو نہیں ملا ہے. ٹرمپ کے جو کور بیس ہے وہ جنگلی جاہل ہلبلیز کی ہے. ٹرمپ نے جس طریقے سے اپروچ کی 4 سال پہلے 5 سال پہلے, وہ اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد تعصب تھی. یہ وہ لوگ ہیں جن کا لیڈر وہ ہوتا تھا, کیا نام تھا اس کا, یہ باقیات ہیں سول وار کی, جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا. تو ٹرمپ نے آہستہ آہستہ اپنی بیس کو بڑھایا, اور اس کی کئی وجوہات ہیں کہ ٹرمپ کیوں کامیاب ہوا. میرے بھائی نے, وڑائے صاحب نے ابھی کہا کہ جی وہ ہلری نے ووٹرز نہیں نکالے. ہلری کو 3 ملین ووٹ زیادہ ملے ہیں ٹرمپ سے. تو بات یہ نہیں تھی, بات یہ تھی کہ ایک چینج آئی تھی, اور وہ چینج وہ لوگ لے کے آئے تھے جو ریسس لوگ ہیں, جو تعصب پسند لوگ ہیں. انہوں نے ان کو ایک موومنٹ مل گئی. اس سے پہلے وہ, میں اس کا نام بھول رہا ہوں, ایک بڑا مشہور ان کا رائٹ ونگ کا لیڈر تھا, بہت پرانا, لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. تو وہ یہ ہمیشہ سے یہ جیسے میں نے کہا, یہ باقیات ہے سول وار کی. ان کو ایک ایسا لیڈر مل گیا جس کے پاس پیسہ بھی تھا, ریسورسز بھی تھے, جس کے پاس نعرے بھی تھے. اس نے آتے ہی پہلے دن میکسیکنوں کے, مسلمانوں کے خلاف نعرے لگائے. اس کو بنیاد بناتے ہوئے اس نے اپنی بیس اسٹرانگ کی ہے. اور بقول ڈیوڈ ایکسل راڈ کے, کہ اس کی جو 30-35% کی بیس ہے وہ سالڈ بیس ہے اس کی. جب تک وہ بیس کم نہیں ہوگی یہ ہار نہیں سکتا. اور یہ تو ایک بڑا ہی عجیب وہ سلسلہ ہوا ہے میلنگ ووٹ کا اور بائیڈن کے اوپر آنے کا. ورنہ تو آپ دیکھیے کہ اگر برنی سینڈر ٹرمپ کے مقابلے میں ہوتا کینڈیڈیٹ, تو ٹرمپ تو ناک آؤٹ کر دیتا اس کو اس بیس کی بنیاد پہ. یہ تو ایک بادشعور لوگوں نے, ریپبلکنز کے بھی سمجھدار لوگوں نے, اور جو میلنگ بیلٹ میں جو ڈیموکریٹس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, اس کی وجہ سے ٹرمپ ہارا ہے. اور جو قدرتی ایک آفت آئی ہے پینڈیمک کی, اس کی وجہ سے ٹرمپ ہارا ہے. ورنہ ٹرمپ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی پوتن بننے کی, یا اردوگان بننے کی, یا آپ کہہ سکتے ہیں نارتھ کوریا کا لیڈر بننے کی. اس کا تو ڈریم کم ٹرو ہو جاتا. آپ کو یاد ہوگا جب وہ نارتھ کوریا سے واپس آیا تھا, تو اس کا یہ اسٹیٹمنٹ موجود ہے آن ریکارڈ کہ اس کے لوگ اس کے آگے باؤ ڈاؤن ہوتے ہیں, کاش کہ میرے لوگ بھی میرے ساتھ ایسی کریں. تو یہ تو اللہ پاک نے ہمیں ایک بہت بڑے عذاب سے بچا لیا پینڈیمک کی وجہ سے اور دوسری چیزوں کی وجہ سے, کہ اس سے جان چھوٹ گئی ہے. ورنہ اس ملک کا تو بیڑا غرق ہو جاتا. اور پھر کچھ لوگ ہیں جو اپرچونسٹ ہیں, جیسے مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں ٹیڈ کروز بیک آف کر گیا ہے, اس سے پہلے وہ لنزی گرام بیک آف کر گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو صبح شام جیزس اور گاڈ کی جگہ ٹرمپ ٹرمپ کہتے تھے روز صبح اٹھتے ہی. آج وہ بھی ڈوبتے ہوئے جہاز سے چھلانگے مار کے اتر گئے سارے چوہے. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ جو بیس کور بیس ہے اس کی نمبر آپ دیکھیے. انفارچونیٹلی وہ کور بیس اس کی بڑھتی گئی ہے. اور اب اندازہ ہوا ہے دنیا کو کہ جہالت جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا ہی اثاثہ نہیں ہے. جاہل لوگ دنیا میں کہیں بھی ہو سکتے ہیں, ایک امیر اور پڑھے لکھے ملک کے اندر بھی ہو سکتے ہیں. اور آج آپ جو ان کے ٹی وی پہ آ کے ان کے بیانات دیکھتے ہیں, جو ٹرمپ کے آج بھی سپورٹرز ہیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اس کی جو گراف ہے وہ نیچے نہیں گر رہا ہے. سلمان آفتاب صاحب, آپ کو یاد ہوگا غالباً 8-7 مہینے پہلے کی بات ہے کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ یار ہمیں یہ لگتا نہیں ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے ٹرمپ کے اگینسٹ میں. اور نہیں 8 مہینے پہلے نہیں, یہ میں نے برنی سینڈر جب جو کینڈیڈیٹ تھا اس وقت, پرائمری کینڈیڈیٹ, اس کے بارے میں جی جب آپ نے یہ کہا تھا کہ بڑی آسانی سے ٹرمپ جیت جائے گا, تو آپ اس وقت کیا یہ سمجھتے تھے کہ 3/4 امریکہ جو ہے جاہل تھا؟ کیا کہا آپ نے, آخری جملہ کیا ہے آپ کو؟ میں نے یہ کہا آپ کو کہ جس وقت آپ یہ سمجھتے تھے کہ ٹرمپ جیت جائے گا اور اس کے اگینسٹ میں ڈیموکریٹ کے پاس کوئی بندہ نہیں ہے, آپ کے یہ الفاظ تھے, تو کیا آپ یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت 3/4 آف امریکہ جاہل تھا؟
देखिए, मैंने आपको उस वक्त कहा था जब जो बाइडन ने अपनी कैंडिडेसी अनाउंस नहीं की थी और बर्नी सैंडर जो है वो उस वक्त टॉप कंटेंडर था, डेमोक्रेटिक पार्टी का फ्रंट रनर था, उस वक्त मैंने आपको ये बात की थी और मैंने आपको उस वक्त ये बताया था कि जो उसकी 30-35% जो कोर बेस है उसके साथ अगर इंडिपेंडेंट, जाहिर है कि बर्नी सैंडर के ऊपर उसके ऊपर एक वो लगा हुआ है सोशलिस्ट का, तो जो मेजॉरिटी अमेरिका है वो सोशलिज्म के अगेंस्ट है। तो जो इंडिपेंडेंट वोटर्स थे और जो वो वोटर्स थे रिपब्लिकन्स के जो फॉर एनी रीजन ट्रम्प को पसंद नहीं करते थे, उनका भी कोई चांस नहीं था कि वो बर्नी को वोट देते। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये आसानी से जीत जाएगा। लेकिन जब जो बाइडन डे वन से, जब से मेरा इंटरव्यू दुनिया टीवी के ऊपर था, उसमें मैंने यही बात की थी कि अगर जो बाइडन जैसा कैंडिडेट आ गया तो देयर इज सम चांस, अदरवाइज वी हैव नो चांसेस टू विन। तलत रशीद साहब, ये बताइए कि आपकी पार्टी ने जो भी कुछ पोस्चर रहा, जो जिस तरह से सियासत की, क्या आप समझते हैं कि जो बाइडन की जगह ओबामा कैंडिडेट होता तो आपकी पार्टी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी या गोरे को काले से लड़ाने की, कि अगर ओबामा के सपोर्ट पे पूरे ब्लैक्स तंजीमें निकल आती, ब्लैक्स लोग निकल आते, मैक्सिकन निकल आते, पाकिस्तानी, इंडियन, अरब ये निकल आते, तो इसने तो कोई आपकी पार्टी ने कसर नहीं छोड़ी थी इस मुल्क को तोड़वाने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं एक सलमान भाई अपने में सिखाऊं कि ये जो 74 मिलियन जाहिल नहीं है उसमें मैं भी शामिल हूँ और हमारे काफी दोस्त भी शामिल हैं उसके अंदर, और ये जितने भी हैं ये कोई जाहिल तो सबसे ज्यादा जाहिल तो डेमोक्रेटिक पार्टी में है, क्योंकि उनमें तो कोई, अब वो जाहिलियत इसलिए है कि वो एक कैंडिडेट नहीं ला सके जो ट्रम्प के मुकाबले, वो जो बाइडन को लेके आए, जो बेचारा अपनी बीवी का नाम भूल जाता है, जिस बेचारे को कुछ पता ही नहीं, वो कल भी प्रोपेगेंडा है, ये सब रिपब्लिकन का प्रोपेगेंडा, ऐसा नहीं है। आप नहीं मैंने खुद सुना है टीवी पे, मैं कल भी मैंने सुना। अब ये जो इसकी स्पीचेस हैं जो इसके, भाई वो तो प्रॉम्प्ट से पढ़ता है, कुछ तो कर भी नहीं सकता वो। मैंने पूरे 74 मिलियन को जाहिल नहीं कहा, मैंने उसकी कोर बेस को जाहिल, आपने यही कहा ना, मैंने कहा कोर बेस, मैंने कहा 35% कोर बेस, कोर वही है ना 74 मिलियन है जो जिन्होंने वोट दिया। कोर 74 मिलियन कोर कैसे हो सकते हैं? नहीं आपने जो कहा ना ये सारे जाहिल, मैंने कहा कोर बेस मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता इसको, नहीं लेट्स नॉट डिस्कस दिस, वरना फिर लंबी वो डिस्कशन हो जाएगी। सही है। नहीं हाँ, मैं मतलब है कि जो हमारा पॉइंट है हम उसको वाजे करना है, हमने यहाँ बरादराना तरीके से जो है अपना मौक़िफ़ पेश करना है। जैसे हम किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते, ना डेमोक्रेट को ना रिपब्लिकन को, हम अपनी राय जो है वो पेश करना चाहते हैं जो हम जिस तरीके से हम देखते हैं। तो आपका जो सवाल था कि जो ट्रम्प है उसने डिवाइड कर दिया है लोगों को, मतलब कालों को, देखें कालों को सबसे ज्यादा जॉब किसने दी है? ट्रम्प ने दी है। मैक्सिकनो को सबसे ज्यादा जॉब दी है। माफ कीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि ये आपस में कुछ तो खून हो जाता, क्योंकि ये तो दोनों तरफ वाइट थे। अगर बाइडन की जगह ओबामा होता तो यानी एक तरफ से मुतासिब इतना बड़ा ग्रोह आ गया, जाहिर है कि रिपब्लिकन सारे मुतासिब नहीं है, लेकिन जितने भी लोग आए वो मुतासिब थे। इसी के अगेंस्ट में अगर ब्लैक्स निकल आते और दूसरी कौमें निकल आती जो यहाँ आए हुए हैं, तो फिर तो ये कुछ तो खून हो जाता और ये तो लाई कहीं थमने वाली नहीं थी, ये मैंने कहा। हाँ नहीं लेकिन ये कि अच्छा हुआ कि नहीं आए, क्योंकि देखे ना सबको पता था कि ये जो रैली है ट्रम्प की है इसमें हंगामा कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बेस करें ना पुरानी रैली जितनी भी है उसमें कहीं हंगामा हुआ, हजारों लाखों के हिसाब से लोग आए, लेकिन कहीं भी, इसलिए पुलिस जो है वो भी जो कैपिटल पुलिस है वो भी रेडी नहीं थी। तलत साहब इसमें तमाम रिपोर्टें थी कि हंगामा होगा, तमाम रिपोर्टें थी, इस बुनियाद पे के माजी के जलसों में नहीं हुआ, वो एनवायरनमेंट मुख्तलिफ थे, इस वक्त तो उनसे कहा जा रहा था चढ़ दौड़ो, तो जाहिर है इसलिए ये बात के इम्कान तो थे अपनी जगह पे कि वहाँ पे हंगामा होगा और उनके इंतजाम क्यों नहीं किए गए। मेरा ख्याल है कि इस पर इसकी तहकीकात होनी चाहिए ताकि जिम्मेदारों का बाज़ाब्ता तयन हो सके। तलत भाई, you're mixing apples and oranges। इसकी रैली से जब आप मिला रहे हैं, अब जो हुआ है, जिन लोगों ने किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी वालों ने भी कहा है कि जिन लोगों ने ये किया है गलत किया है, वो सब ने कंडेम किया है इसको, उसमें ट्रम्प भी शामिल है। नहीं किया
कंडोन नहीं किया उन्होंने, किसी ने नहीं कहा कि ये ठीक हुआ है, सब ने इसको कहा कि ये गलत हुआ ये, और जो भी लोग अंदर घुसे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, बल्कि उनको पकड़ना चाहिए। ये तो उनसे ज्यादा ट्रम्प को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ट्रम्प की वजह से ये हुआ है, उसने ऑर्डर किया। ट्रम्प 2024 में फिर आ जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? या इन योर ड्रीम्स अभी तो उसको बैन कर देंगे, वो किसी काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता। अरे भाई 16 सामने एक अभी उसको बैन करेंगे, काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता वो। सलमान अरे 16 में मुझे सबने कहा ट्रम्प नहीं आएगा, लेकिन क्या ट्रम्प अब काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता, ऑर्डरमैन का। देखिए ये पाकिस्तान नहीं है, ना बनाए, आप देखिएगा ऐसे ही होगा। ऐसा अब आप ऐसा ना देखिएगा, करें सलमान साहब, ऐसा ना आप आपने अभी देखा 25th अमेंडमेंट की जो बात हो रही है, आपने देखा उसमें? अरे उसको अगर सेनेट सलमान अगर 25th अमेंडमेंट हो गई और सेनेट ने उसको कर दिया इंडाइट कर दिया इम्पीचमेंट में, तो वो इलेक्शन कोई नहीं लड़ सकता। सलमान भाई इस तरह तो ये प्रोग्राम बिल्कुल ही पाकिस्तान जब जाएगा ना, तो इसमें पाकिस्तान में ऐसा नहीं लगेगा। तो तलत रशीद साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आप इस वक्त ट्रम्प को फॉलो करेंगे या पेंस को? आपकी आवाज कट रही है। आप ट्रम्प को फॉलो करेंगे या पेंस के पीछे जाएंगे? तो नहीं, हम ट्रम्प को फॉलो करेंगे, बल्कि हम तो अभी से तैयारी कर रहे हैं 2024 की। अब देखें ना, अब जो इलेक्शन होगा ना 2 साल में, उसमें देखें डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो एटलीस्ट 60 या 70 सीट हारेगी। ये सिटिंग प्रेसिडेंट के लिए हमेशा होता है ये। और जो बाइडेन जो है पता नहीं 1 साल भी प्रेसिडेंट रहता है या नहीं, तो ये तो उनकी अपनी पार्टी वाले जो है इसको निकाल के किसी को, इस बेचारे को तो बोलना भी नहीं आता, ये कितने कोशिश कर, लेकिन ये है 47 ईयर एक्सपीरियंस को आप कह रहे हैं बोलना एक्सपीरियंस में, वो 47 years of experience in government। सलमान भाई मुझे बोलने दें, सलमान मुझे बोलने दें। 70 देखे ना, अभी इन्होंने कहा ना 74 इतना एक्सपीरियंस है भाई, इतने सालों में कुछ नहीं कर सका तो अभी आके करेगा कि अभी मैं ये चीज करूंगा, ये तो पहले साल क्या किया इसने, क्या नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। 2 मिनट दे, मैं इनको बताता हूँ 47 ईयर्स में क्या किया है, कुछ भी नहीं किया। सलमान साहब, ऐसा ये प्रोग्राम फिर खिचड़ी बन जाएगा। देखिए इसके लिए इस तरह नहीं होना चाहिए। और हम आपस में दोस्त हैं, हम भाई हैं आपस में, हम कोई किसी तरफ भी है, तो ये जब हम पाकिस्तान में फिर हमें बहुत ज्यादा एडिट करना पड़ जाएगा। तो बात आपकी सही है, और मैं भी यही समझता हूँ, क्योंकि मैं इस साइड पर बैठा हूँ, लेकिन मैं भी ये समझता हूँ कि यानी सदर ट्रम्प का जो भी पोस्चर रहा है, तो वो लगता ऐसे ही था कि लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, पैसे की सियासत, ये लगता था। मैं गो के किसी के साथ नहीं हूँ, आप जानते हैं। तो जो बात आपने कही वो आप हजरात का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। अब अगर कोई और देखें जब्बार भाई, इस मुल्क की बदकिस्मती देखें कि जो आदमी जेरी स्प्रिंगर शो, आपको याद है, जो जेरी स्प्रिंगर शो में आने वाला आदमी जो है वो भाई का सदर बन गया। लेट्स फोकस ऑन जो है जेरी स्प्रिंगर, ही बिलोंग टू जेरी स्प्रिंगर शो। अरे मैं भी गलती से दोबारा आप असर भाई, आप समअप करेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहरहाल हर 2 नुक्ता नजर आपके सामने आ गया है। जी। बात है, इस बात पे इत्तेफाक किया गया है कि मेरा ख्याल है सलमान आफ्ताब साहब भी इस बात पे इत्तेफाक कर रहे हैं कि अगर फेल ये जो हंगामा था और इसमें पार्लियामेंट की जो पुलिस है या पार्लियामेंट की इंतजामिया है वो उसकी फेलियर था, तो वो पार्लियामेंट किसके मातहत है वो सबको पता है। यानी वो हाउस ऑफ कॉमन जो है वो तो कांग्रेस जो डेमोक्रेट के पास है, लेकिन सेनेट बहरहाल रिपब्लिकन के पास है। तो बहरहाल ये दोनों की जिम्मेदारी है कि वो इस वाक़े के मुकम्मल तहकीकात करके जो जिम्मेदारी सिक्योरिटी के जिन लोगों की जिम्मेदारी थी उनका तयन किया जाए। और बहरहाल उसमें मैं ये समझता हूँ कि सदर ट्रम्प की भी जिम्मेदारी वाज़ेह तौर पे थी कि जिस तरह के इश्तिहाल अंगेज़ी की गई, तो उस इश्तिहाल अंगेज़ी में की किसी हद तक काफ़ी जिम्मेदारी सदर ट्रम्प पे भी आयद होती है कि जिस तरह भाई क्या बात कर रहे हैं, किसी हद तक ये इश्तिहाल अंगेज़ी करवाई ट्रम्प ने है। जी और ट्रम्प की वजह से हुई है, उसने करवाई। आप कह रहे हैं किसी हद तक जिम्मेदारी, सारी की सारी जिम्मेदारी ट्रम्प के ऊपर। जुलाई में जो कुछ पूरा अमेरिका जल गया था जुलाई के अंदर, उस वक्त क्या हुआ था? नहीं, लेकिन फिर ये मुझे बताएं कि नहीं आप सारी जिम्मेदारी ट्रम्प पे डाल दें, लेकिन मुझे ये बताएं कि वो कौन सी साजिश थी कि जिन्होंने सारे मुजाहिरीन को वहां तक आने दिया, कौन जिम्मेदार था?
सर उस गवर्नमेंट किसकी है वॉशिंगटन डीसी में? सलमान आफ्ताब चले तो वो दूर से थे ना डीसी में जी चले तो बहुत दूर से थे वो लोग। नहीं, वाशिंगटन डीसी में जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेट्स की है। जी, और पुलिस वाले कौन है? और ट्रम्प को पुलिस सपोर्ट करती है, हर शहर की पुलिस सपोर्ट करती है। वाइट नेशनलिस्ट पुलिसमैन सारे ट्रम्प के साथ हैं आज भी। यही तो इसने जहर यही तो बोया है इसने इस मुल्क में। नहीं सलमान साहब, जिम्मेदारों को सामने लेके आई है कि जिन्होंने इस बड़े हुजूम को पार्लियामेंट के अंदर तक दाखिल होने के राह हमवार की, जिन्होंने उनको अंदर तक आने दिया और फिर बाद में शोर मचा रहे हैं। जिन्होंने अंदर आने दिया वो बराबर के जिम्मेदार हैं, जो इश्तिहाल दिला रहे हैं वो जिम्मेदार हैं, लेकिन जिन्होंने आने दिया इस बड़े मॉब को, और तो वो भी बराबर, जिन्होंने आने दिया इस बड़े मॉब को वो भी ट्रम्प के सपोर्टर थे, वो वाइट पुलिसमैन थे। पुलिस की सारी यूनियन पूरे अमेरिका में हर शहर की पुलिस यूनियन ने ट्रम्प को इंडोर्स किया है। पुलिस यूनियन, फेटर्नल ऑर्डर ऑफ पुलिस सारे ट्रम्प के साथ हैं। ये रेसिस्ट लोग हैं, ये माइनॉरिटीज के खिलाफ हैं। नाज़रीन, ये हमारी बहस जो है बहुत हार्ड हो गई है और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे चैनल के लिए, और ये पूरे अमेरिका से साउथ से हमारे वड़ाइश साहब और सलमान आफ्ताब साहब शिकागो से, और असफर भाई वहाँ डीसी वाशिंगटन से इन्होंने हमें ज्वाइन किया। तलत रशीद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा दिल गुर्दा है कि आप सलमान भाई के सामने मैंने लाके बिठा दिया, लेकिन ये आपके लिए बड़े अच्छे जज्बात रखते हैं। चूंकि हम ये एडिट करेंगे बाद ये आगे जाके, चूंकि आप दोनों को फिर भी मैं बिठाऊंगा, किसी और मकसद के लिए बिठाऊंगा और आप दोनों ही बैठेंगे इंशाल्लाह। तो ये एक हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक का नुक्ता नजर है। आप हजरात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे शिकागो से जब्बार में हो और अपने तमाम शुरका के साथ अल्लाह हाफिज कहता है। पाकिस्तान और अमेरिका जिंदाबाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।